Sharma. Good evening and welcome to all of you. Shri Y.K. Gupta, Vice Chairman, Sharda Group of Institutions. Shri Anand Swarup Ji, the real inspiration behind the entire enterprise, members of Founders Family, advisors, directors, teams, esteemed guests, members of media, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great pleasure for me to be here this evening for 17th Foundation Day function of Sharda Group of Institutions. I wish to take this opportunity to convey to all of you my most sincere greetings and good wishes on this happy occasion. 16 years ago, on this very day, we had laid the foundation stone of this great institution on a barren piece of land away from all the conveniences of a city life. Today, we have reached a level of excellence where we are recognized as one of the significant organizations in the region and also a symbol of success, commanding respect from all our stakeholders and also from general public. 16 years is not a very long period in the life of an organization, but the achievements of this organization so far show that we can compress this time effectively. We have achieved quite significant successes during a short span of time. Now, if we examine minutely as to what has led to the success, you will not find anywhere expressed, but if you examine the decisions, actions that we have been taking as an organization, it will point out to three basic premises which I would like to put before you so that it guides us in achieving our destiny. As one of the best groups in the country. Now, the first premise which I think was behind this enterprise was that we have got a capacity to think big. We have got capacity to dream big, and we have got the competence to draw grand plans for our future. The second basic premise was that we have belief and confidence in the future. We believe that the future will hold promise for us, and even if it does not, we will have capacity to ensure that circumstances change to favor us. The third premise was that we had confidence in our capacity to translate the vision into, or the dreams into reality. These are the basic premises which have guided us so far, and I'm quite sure in case we employ these things effectively in the future, there's no doubt that we should reach the height we are at. During the last 16 years, we have acquired a status where we have become one of the biggest educational diversified
from the merits, which has 28 or 18 colleges under its wings, and which caters to a wide spectrum of academic and professional disciplines. We have assembled a faculty of almost 1,000 members and with very high level of competence. 150 of them are PhDs in the specialized field. They have got a very high academic credentials, and we are confident that they have dedication and commitment to the cause which the organization represents, and they will ensure that we achieve the type of excellence that we aim for. While we can be very satisfied and happy about our performance so far, we have to also understand that there are daunting challenges ahead of us. In the last 15 years, we had a very unprecedented sort of growth in the education sector. There has been mushrooming of educational institutions in the private sector, leading to the decline in quality and leading to the much more severity of competition for resources from the common pool from where we draw the students and our faculty members. It's become extremely difficult for any enterprise, for any educational institution to maintain the standard because of the scarcity of right talent in the pool available to us. Therefore, it is necessary that we take steps to ensure that we continue to command respect from all our stakeholders. We should be able to give to the prospective employers the right type of competencies which they desire. We should be able to give to the students the type of education that will bring them, that will lead to the happy and meaningful life. We should give to the parents an assurance that once their wives graduate from our institutions, they will be getting good jobs and they will lead a good life. We also have to ensure that our people, our employees, get the right compensation for the contributions that they make. Unless we harmonize the interests of people within the group, it's extremely difficult to build a team who has a team dedicated to the cause which we represent. I will therefore comment that all of us at all levels should ensure that we properly understand our sectional interests, we reconcile them, and we strive to see that our sectional interests do not take precedence over the expectation of the organization as a whole. Our only hope for future is the young people, young faculty, young administrators. We expect that they will learn how to think big and not give themselves to despair. I would only like to point out that the example of the vision and the determination that can lead to success, which became the basis of the establishment of this great institution. We can take lessons from this and see that we unitedly move forward, forgetting our internal differences, and bring the organization to a level we can command respect from all the people, from all stakeholders and public at large. With these words, I wish all the success
and in all the endeavors of the young people and all the members of his family. Thank you. For your great words of wisdom. बाकी सभी चीज़ों से मैं सहमत हूँ, मगर आपने एक बात कही, 16 वर्ष संस्था के जीवन काल में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मगर इंसान के जीवन में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया विधायक महोदय। अभी माननीय श्री प्रदीप माथुर जी, जो कि मथुरा वृंदावन से विधायक हैं और जिनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी हुई है, वो भी बता चुके हैं। वाइस चेयरमैन महोदय से अनुरोध है कि ये गुलदस्ता भेंट करके प्रदीप माथुर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद माथुर साहब आपके आने का। आशा है कि आपकी कृपा हम लोगों को ऐसे ही प्राप्त होती रहेगी। हमारे मैं प्रोफेसर तेवतिया, मिसेस तेवतिया, डॉक्टर ए.के. गुप्ता और मिसेस गुप्ता से अनुरोध करूँगा कि शॉल पहना करके उनका सम्मान करें और हम लोगों की भावनाओं का इजहार करें और गुलदस्ता देके बुके दे करके उनका चले सब चले। एक मिनट मतलब तालियों से आप सब अभिनंदन करें। चेयरमैन श्री पी.के. गुप्ता जी थोड़ी देर में ही आने वाले हैं, उनका इंतजार है। तब तक मैं अनुरोध करूंगा श्री वाई.के. गुप्ता जी से और श्रीमती भावना गुप्ता जी से कि वो मंच पर आए और मेरा अनुरोध है श्री एस.के. गुप्ता एडवाइजर, मिसेस गुप्ता, डॉक्टर एस.वाई. चौधरी, मिसेस साइड से हम लोगों ने फेस्टिवल क्रिकेट मैच का आयोजन किया था। उसकी उपविजेता टीम रही आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज और विजेता टीम रही हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। उपविजेताओं की ओर से मैं अनुरोध करूंगा उनके कैप्टन मिस्टर एस.के. राठौड़ अपनी टीम के, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उपविजेता टीम के हैं मिस्टर राम पाल जी और विजेता टीम के हैं डॉक्टर एस.के. के हाथ से रनर्स ट्रॉफी स्वीकार करें। Three cheers for Sharda Group. Hip hooray! Hip hooray! ये जोश है जश्न मनाने का, सफल
दूसरा कंट्रीब्यूशन। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं शारदा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के 70वें फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा था जब वो परफॉर्मेंस चल रही थी कि ये आनंद से इतनी परफॉर्मेंस है, ये हिंदुस्तान कॉलेज से परफॉर्मेंस है, ये और HITM से है। तो ये एक ऐसा समागम है आज का दिन कि जहाँ चारों इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलते हैं और एंजॉय करते हैं इस फंक्शन को। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से इस फंक्शन को आज ऑर्गेनाइज किया और एक यूनिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के फंक्शन से वी ऑल विल बिकम यूनाइटेड और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके अंदर कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन संस्था के प्रति, समाज के प्रति जरूर और तेजी से आगे बढ़ेगी। 16 दिसंबर 1995 का वो दिन जब मेरे ब्रदर साहब इस वक्त चेन्नई से लौटे थे और मन में ये भाव था कि हम लोगों को उत्तर भारत में एक संस्था खड़ी करनी है इंजीनियरिंग की, और इस उत्तर भारत में कोई संस्था नहीं थी। बड़ा पथरीला सा कार्य दिखता था, बट उनका जुनून, उनका पैशन और आप सब लोगों के सहयोग से ये संस्था आज इतना वृहद रूप ले चुकी है। उस वक्त हमारे साथ मेरे ख्याल से 8-10 लोग हुआ करते थे। रामफल जी और सुनील गोयल तो हम लोग के साथ बिजनेस में पहले से थे। दे लुक्स आफ्टर आवर कंप्लीट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। और फैकल्टी के रूप में प्रोफेसर JS यादव, डॉक्टर हरीश सिंह चौहान, प्रोफेसर गौर, डॉक्टर ममता शर्मा, पंकज सक्सेना और 4-5 SB शर्मा, जो मुझे नाम याद आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उसके बाद गोरखपुर से प्रोफेसर RC गोयल साहब, जो कि उस वक्त वहाँ से रिटायर हुए थे, उन्होंने उस संस्था को स्थापित करने में अपना काफ़ी योगदान किया। वेरी नाइस पर्सन, वेरी थॉरो जेंटलमैन, और काफ़ी अच्छी फुटिंग उन्होंने हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को दी। उसके बाद प्रोफेसर CK सिंह यूनिवर्सिटी से हम लोगों के बीच आए। डॉक्टर BD गुप्ता साहब अभी हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। लगभग 12 साल उन्होंने इस ग्रुप को अपनी सेवाएं दी और काफ़ी कर्मठ थे अपने हर कार्य करने के लिए। HBTI कानपुर और KNIT सुल्तानपुर और वेरी गुड लाइसेंस विद द UP गवर्नमेंट एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही हैज गॉट। और आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज को खड़ा करने में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। उसके बाद प्रोफेसर देवदिया साहब, जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय तक रहे और काफ़ी कुछ उन्होंने इस संस्था को दिया। और आज जो संस्था में जो HR पॉलिसीज़ हैं, जो सिस्टम हैं, जो प्रोसेस हैं, उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। और कैसे हम लोग, जितने भी लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनको रिटेन कर सकें, उनको एक अच्छे सिस्टम प्रोसेस दे सकें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा किया जाए समय समय पर। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर देवदिया एंड हिज टीम हु हैज रियली वर्कड वेरी हार्ड। उसके बाद प्रोफेसर RC महेश्वरी, जो IIT दिल्ली से पिछले 6 साल से हमारे बीच हैं, उन्होंने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, इस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, हिंदुस्तान कॉलेज में अपना काफ़ी बड़ा सहयोग दिया संस्था को खड़ा करने में। डॉक्टर AK गुप्ता और उनकी पूरी टीम, चाहे उसमें MP सिंह हो, SK सिंह हो और उनकी तमाम टीम, उन्होंने BMS इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि मेरे दादाजी के नाम से है, उसको खड़ा करने में अपना अहम योगदान निभाया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके इन अथक प्रयासों से। और आज की वो संस्था को देखते हैं। डॉक्टर नवीन गुप्ता, जो कि हम लोगों के साथ 98 से एसोसिएटेड हैं। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना तभी हुई थी और उनका और उनकी टीम को भी मैं बहुत बहुत इस आज स्थापना दिवस पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके अथक प्रयासों के लिए और सब लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए जो उनके अंदर एक कला है। उसके बाद प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष हिंदुस्तान कॉलेज में अभी हाल ही में पिछले साल डायरेक्टर ज्वाइन किए, जो कि पहले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में थे और लगभग 21 साल वहाँ रहने के बाद ही इज अ ग्रेट एकेडमिशियन। आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम एंड नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर अंडर हिज लीडरशिप नाउ हिंदुस्तान कॉलेज इज ग्रोइंग।
प्रोफेसर चौधरी जो कि आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज की आजकल बात को संभाल रहे हैं और उसमें तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, आनंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीएड प्रोग्राम जो पीके सिंह देख रहे हैं, महेश प्रसाद देख रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत इस स्थापना दिवस पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने अथक प्रयासों से एक कर्मठ और निष्पक्ष और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की कोशिश कर रहे हैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मुझे उम्मीद है कि उनके लीडरशिप में आने वाले वर्षों में वो कॉलेज यूपीटीयू के टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में जरूर अपना नाम स्थापित करेंगे। इन बिटवीन 2004 में हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया, 2005 में वहाँ मैनेजमेंट कॉलेज शुरू किया, 2006 में वहाँ डेंटल कॉलेज शुरू किया और 2008 में मेडिकल कोलैबोरेशंस करे। तो अब तो बस मन में एक ही चाहत है कि शायद जो इंस्टीट्यूशन, मम्मी पापा की जो ब्लेसिंग्स हैं और ब्रदर की जो पैशन वर्किंग है, उनकी जो दूरदर्शिता है, जो विजनरी है, क्योंकि काफ़ी विजनरी है, मैं उनको आज वहाँ स्टडी कर रहे हैं। लगभग 9000 स्टूडेंट आजकल यूनिवर्सिटी में हैं। उम्मीद करता हूँ कि सन 2013 में लगभग 50 विषयों के बच्चे इस विश्वविद्यालय में होंगे। जिस तरह से प्रोफेसर तेवतिया ने कहा